much for saying that. And yes, you truly said it that I couldn't have asked for a better debut. I definitely could not have asked for a better debut. I remember when Adhyan sir told me the story and I heard Ankit sir's song, I was like blown away. I thought that this is going to be the new love anthem. It is such a beautiful song, and Neil sir and Adhyan sir being so reputed in the industry, and they've been very kind to me. They've really helped me out at every step, and मैं चाहती हूँ कि बस ऑडियंस इसको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दे, उतना ही प्यार जितना हमने इस गाने को बनाने में लगाया है. आपका जो डेब्यू आई थी Yes. लाइक अ नेगेटिव आल्सो इज अ ड्रीम जॉब आप बहुत अनकंट्रोल बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू. क्या- सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ उन सबका, पूरी टीम का, क्योंकि उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था. और द ट्रस्ट विच अध्ययन हैड ऑन मी एंड द सपोर्ट विच आई गॉट फ्रॉम नील, अमेजिंगली entire video was all totally given credit to both of them, because if they would have not been there, I would have not been doing such a great job, in this thing. And really, it is amazing video. You should all really watch it, share it, and please need your love for all it. एलिमेंट ऑफ इट आज वर्ल्ड में इतने गाने बन चुके हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको निभाना, क्योंकि इतनी बार आज सुन चुके हैं हम लोग. आशिकी सभी बार हुआ है, किस तरीके से पेश करना है वो Correct. अलग बात में वही बात बहुत तुरंत तरीके से मैं मेरी धुन भी बहुत कमाल, सोने पे सुहागा शूट बहुत तगड़ा. Overall song is mind blowing. Mind हम blowing. बस चाहते हैं हमने जितना प्यार दिया इस गाने को, आप भी उतना ही प्यार दें. वो Exactly. हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी. आई रियली होप that all of you all can connect somewhere that yes, हम भी इस feeling से कभी ज़िंदगी में गुजरे हैं, and you feel that this is a song of both love and pain, and I really hope that all of you all like it and all of you all love it. Thank you. और जाते हैं फर्स्ट कभी अप्रोच और बात की हाउ एक्साइटेड आर यू. I am very excited actually because हम जब chapter 1 shoot कर रहे थे तो because generally क्या होता है कि this, as our director says, a film by Adhyan Suman, so he wanted to say that music can also have beautiful story behind, and he was like, what I want to depict is a beautiful story, and उसका एक prequel होगा, उसका एक sequel होगा जो कि बहुत ही mind blowing है. मैं चाहती हूँ कि आपको reveal कर दूँ, but मैं कर नहीं सकती क्योंकि मेरे director मुझे बहुत डांटेंगे, but I really hope कि इतनी twisted और इतनी story है जो आपको दिल से बहुत साथ अक्षय कैसा रहा एग्जांपल आप. अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही हेल्पफुल थे दोनों, और मुझे तो सीरियसली उन दोनों ने बहुत हेल्प किया ईच एंड एवरी सीन करने में, बिकॉज आई वॉज न्यू इन दिस. तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला उन दोनों का, एंड थैंक्स टू बोथ ऑफ देम. मैं थोड़ी सी नर्वस थी स्टार्टिंग में, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स माय डेब्यू वीडियो, एंड हाउ आई वाज टेलिंग यू दैट इट्स अ ड्रीम डेब्यू फॉर एनीबडी, बट दोनों ने मुझे बहुत ही लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ किड, दे वर लाइक just fly, we are the wind beneath your wings, so they were very supportive, and I really thank them from the bottom of my heart, क्योंकि I am what I wanted to do. That girl, she is a very vulnerable girl, she is a damsel in distress and she wants somebody to save her. So मैं उस story को सुनते actually उस thought process में गई, and I hope कि वो आप हमारे गाने में देख पा रहे हैं कि Neil wants to save me because he loves me so much. वो end में ये भी बोलते हैं कि मेरे बिना, मतलब उनके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है और मेरे बिना उनकी ज़िंदगी है. So I think that I hope कि audience वो connect कर पाए गाने. Yeah, guys, I'm not even kidding. It was 53 to 55 degrees when we were shooting in Dubai, और मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी गर्मी थी. And आप गाड़ी जो देख रहे हैं वो convertible है, right? So there were nothing, but the whole team, the DOP, the director, the actors, all of us, हमने बहुत ज़्यादा. We all got burnt and हाँ, everything. हम लोग all got एक्चुअली burnt. इंडिया आके एकदम लाल हो गए थे. Exactly, बहुत lobsters. मैं अभी भी थोड़ी बहुत लाल हूँ. I mean like. बट क्योंकि आप अपनी क्राफ्ट से और आप जो काम करना चाह रहे हैं और आप गाने से इतना प्यार करते हैं, तो आपके दिल में होता है that you want to make something really beautiful out of it, and we were like, it's okay even if we are sweating, we have to give it our all, and we did. Believe me or not, when you were shooting, you don't even feel these things. Yeah. आपको बिल्कुल धूप नहीं लग रही, वो होटल में कुछ जाके नहीं सर में दर्द exactly. होता था. बाद में पता बट चला. बाहर तो कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ एक्टिंग करना है, 53 that's to it. 55 degrees. It was hot like anything. पहले वो जो
stage? Yes, yes, it is. How long it took for you to make it? I made it by myself, so that's a big thing. मेरे को भी बनवाना है. Yes, and I take at least 2 to 2.5 hours to make it. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank Please you so have much, thank something you. to eat and drink. Thank you. I mean, all your works are great, but this is, I feel personally, it's my by far. What do you have to say? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कभी कभी कि मैं मजाक में कहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने गलती से बना दिया ये, बट आई एम ग्रेटफुल यार. सबसे पहले तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई, और एक टैलेंट जो है अपॉर्चुनिटी के बगैर कुछ नहीं है. तो शिखा ने, प्रोड्यूसर शिखा एंड म्यूज़िक गैराज गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट. राशिद खान जिन्होंने गाना बनाया, जिन्हें गाना लिखा भी है, फिर अंकित साहब जिन्होंने गाना गाया, एंड देन ऑफ कोर्स माय 2 स्टार्स नील नितिन मुकेश एंड श्रेया शर्मा हु केम ऑन बोर्ड. और इनके बगैर मैं गाना कभी बना ही नहीं सकता था, बिकॉज जितनी जुनूनियत और पागलपन मेरे अंदर है उतना ही मैंने नील के अंदर ऑफ कोर्स देखा और श्रेया के अंदर देखा एज अ डेब्यूटेंट. एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि जो हमने सोचा था कि लोग कहेंगे कि यार ये एक फ़िल्म है और ये 3 पार्ट फिल्म का पहला हिस्सा है, और लोग वही कह रहे हैं दैट द सॉन्ग looks like an international film. So I don't know what to know. It is, and आज लोगों 30 seconds and people want to move, you know. But I have always had the challenge of wanting to make viewers stay. जब मैंने अपना पहला गाना बनाया था सोनियो 2.0, तो 6 मिनट का गाना था with a proper narrative story. जब मुझे लोगों ने बोला था यार ये कोई नहीं देखेगा, ये कोई नहीं चलेगा, उस गाने ने 36 मिलियन जो है सिर्फ यूट्यूब पे मारा था. वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर आपका नैरेटिव ग्रिपिंग है, अच्छा है, खूबसूरत है, इमोशनल है, तो कोई रीज़न नहीं है कि दर्शक जो हैं जब 2 घंटे की फिल्म देख सकते हैं तो फ्री में 6 मिनट का गाना नहीं देखेंगे घर पे बैठ. यू हैव टू होल्ड देम, और ये ज़्यादा चैलेंजिंग है कि भाई यू हैव टू होल्ड देम फॉर द सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट एंड मेक देम वेट. एंड आई फील कि टचवुड इंशाल्लाह फर्स्ट पार्ट का जो है रिस्पॉन्स ही इतना अच्छा है कि नाउ पीपल आर आस्किंग कि सेकंड थर्ड में सेकंड कब आएगा, कहाँ शूट कर रहे हो, क्या होगा. सो आई थिंक दिस इज द क्यूरियोसिटी आई वांटेड एंड इट्स फाइनली हैपनिंग. सो फिंगर्स क्रॉस्ड रियली. थैंक यू एवरीवन. बिल्कुल, और फिल्म बनने वाली है और आई एम ऑलरेडी इन टॉक्स. और पहले ये 3 पार्ट हो जाए, उसके बाद जब फिल्म बनेगी तो उसकी अनाउंसमेंट होगी और बहुत बड़े लेवल पे होगी नील के साथ. या मेरे फादर मुकेश जी के बहुत बड़े फ़ैन थे. मेरे फादर ऑलमोस्ट उनका शो देखते देखते उनकी जान चली गई थी, बिकॉज स्टेज टूट गया था और वो मुकेश जी को सिर्फ हाथ लगाना चाहते थे. ये कहानी लोग नहीं जानते हैं. तो अब मुझे मौका मिला है उनके ग्रैंडसन के साथ काम करने का, उनको डायरेक्ट करने का. तो लाइफ हैज़ कम अ फुल सर्कल. और मुकेश जी इज़ अ लेजेंडरी सिंगर एंड नील नितिन मुकेश इज़ अ फिनोमिनल आर्टिस्ट. एंड thank you Neil for completely surrendering to my vision and Shreya of course, it's been beautiful. चैप्टर 2 और 3 कहानी कहाँ जाती है 2 में और फिर मैं कहाँ ले जाता हूँ 3rd में, वो सब मैं लिख चुका हूँ. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिल्मिंग नेक्स्ट मंथ. मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बिकॉज कहने का कोई मतलब नहीं है. लोग जब देखते हैं तो उनको बात समझ में आती है. तो मैं वेट करूँगा जब तक वो उस विजन को फिर से देखें. थैंक यू. आओ. वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे ये प्राइवेट प्रीव्यू के लिए इनवाइट किया गया. तो ये पूरा जो 6 मिनट का सॉन्ग था, ऐसा लग रहा था कि मैं मूवी देख रही हूँ. टोटली एक्शन पैक, रोमांस, एक्शन, लॉट ऑफ इमोशंस. तो ऐसा लग रहा था कि जो 2 घंटे का मूवी है वो 6 मिनट में मतलब कर लिया है. तो नाउ अभी मैं एक्साइटेड हूँ सेकेंड पार्ट के लिए, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड पार्ट एक्चुअली. Thank you. So exciting, the video was, how did you I mean, if you've asked me such an elaborate question, allow me to speak for a minute. I think the whole idea was to shock the audience with a new me, Neil 2.0. I went through a massive transformation. Yeah, I had gained a lot of weight for one of my films, post which then of course the COVID hit. And but when I wanted to come back on screen, I wanted to come back in the same avatar that my fans expect me to be, the cool, dapper. But apart from that, when it came to a music video, I wanted to do something that really stands out, not this typical run-of-the-mill music video with glitz and glory and glam, but something that really kind of resonates with people, their emotions, and a story that might kind of linger for a long time. And then of course Rashid sir, Ankit Tiwari ji's beautiful voice, Rashid sir's music director, and of course Adhyayan Suman's direction over all of this really catapulted to making the song much bigger. I had the opportunity of working with the ever so beautiful Shreya, and I was very privileged and honored that Music Garage considered me worthy of. In overall, I think
The uniqueness of Tu Meri Aashiqui is that it's a 3-part film, I would call it. This is the first of its kind. पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में हो रहा है कि एक म्यूज़िक वीडियो में हम एक फिल्म की तरह उसे दर्शा रहे हैं, उसे आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इसका ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट इसका होगा, फिर तीसरा पार्ट भी होगा। तो तीनों की अगर कहानियाँ एक साथ जोड़ के देखें तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म। बट म्यूज़िक की इंडस्ट्री में शायद ये पहली बार हो रहा है और उसका ये एक्स फैक्टर मुझे अट्रैक्ट कर गया। और आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर लविंग इट, ग्रेट रिस्पॉन्स। We are already touching some great numbers, and yeah, nervous. I think it's Shreya's debut, but I think I'm as nervous as her. Yeah. I know. This is my grandfather's. I know. This is my grandfather's centenary. मुकेश जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 100 साल पूरे हो गए और उन्हें गए हुए करीबन 50 साल हो चुके हैं। फिर भी आज की युवा पीढ़ी तक भी आज भी मुकेश जी को याद रखती है और उनकी वजह से उनकी सारी पीढ़ियों को, उनके सारे जनरेशन्स को इतना प्यार, इतनी इज्जत दी है। तो जाहिर सी बात है कि जब उनका सेंटनरी ईयर है तो म्यूज़िक को लेकर कुछ ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जहाँ मेरे पिताजी वर्ल्ड टूर्स कर रहे हैं उनके शोज़ और उनके गानों को दिलों तक, लोगों के दिलों तक पहुँचाने को, मेरा एक बतौर एक्टर की हैसियत से फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी म्यूज़िक को लेकर कुछ करूँ। तो एक खोज थी एक ऐसे गाने की, एक ऐसे म्यूज़िक वीडियो की जो शायद आपके दिलों तक पहुँचे। और तू मेरी आशिकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो ऐसा एक गाना है जो 100% आप सभी के दिलों तक। मैं आपको सच बताऊं तो मैं नील की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ जब आप देखते और जॉनी गद्दार। और जैसे ही मुझे पता चला कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, पहले तो ऑफकोर्स आई डिड नॉट, बिकॉज एज अ डेब्यूटेंट इट्स अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी टू वर्क विद समबडी हु इज वर्कड इन 30 फिल्म। इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू डेब्यू फॉर मी। एंड फिर जब मुझे यकीन हुआ तो मैं नर्वस हुई कि पता नहीं मैं कैसा परफॉर्म करूँगी, पता नहीं नील सर खुश होंगे या नहीं। आई डोंट Not at all. happy with the She's being very humble. or not, but I am telling you, he has made me so secure as a person, as an actor, as a friend, and on set he literally treated me like a child, that just perform, just leave everything from your mind, go ahead, fly, Adhyan and I will be your wings. And I was so happy that he's been so kind and so cooperative, and he has, guys, zero air about himself, even after belonging from such a family which is one of the epitome of legacies that we talk about in Bollywood. It's very kind of you, Shreya. Thank you. Compliments right back at her. I'm very privileged and honored to have worked with Shreya. बहुत मुश्किल गाना है, 6 मिनट में बहुत कुछ आप तक पहुंचानी है बातें। तो इस 6 मिनट की फिल्म मैं कहूँगा, अध्ययन सुमन जी की 6 मिनट की ये फिल्म है, उस पैमाने पे हम लोगों ने शूट किया है इस गाने को। दुबई में शूट किया है और 50 डिग्री हीट था। तो जहाँ आपकी हीरोइन नॉर्मली अक्सर आपकी वैनिटी वैन्स और इन सब चीज़ों के बारे में डिमांड करती, श्रेया इतनी ही कोऑपरेटिव थी और उतना ही दमदार परफॉर्मेंस भी दिया है श्रेया ने। और मैं मानना चाहूँगा कि वाकई में ये एक अव्वल नंबर का डेब्यू है, बहुत ही अलग किस्म का डेब्यू। जैसे जॉनी गद्दार में अलग किस्म की एक फिल्म करके डेब्यू मैंने की थी, मैं ये इनकी जॉनी गद्दार मानता हूँ। ओह सर, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। एंड आई कैन नॉट वेट टू वर्क विद हिम इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3, बिकॉज मतलब आई एम zipped, बट अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो यू विल बी जस्ट लाइक व्हाट। नो इट्स वेरी एक्साइटिंग। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इज वेरी एक्साइटिंग। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पहले पार्ट को बहुत प्यार दें, है ना? हाँ, बहुत। जितना हमने इसे बनाने में प्यार दिया है, हम चाहते हैं कि आप तक पहुँचे और आप भी इसे उतना ही प्यार दें। एंड यस, जी, मेरी मुलाकात मेरे दादाजी से कभी हुई नहीं। मेरे पैदा होने से पहले ही उनका देहांत हो गया था, मगर मेरी दादी के साथ मैं बहुत ज़्यादा ही करीब था और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे दादा के बारे में कहानियाँ सुनाते वो एक गैप बन गया था और एक मैं अधूरापन महसूस करता था। उन्होंने वो अधूरापन, शायद वो कमी महसूस नहीं मुझे होने दी। और आज तक मुझे इस बात का बहुत गर्व मैं महसूस करता हूँ कि मुकेश जी का मैं पोता कहलाता हूँ। जहाँ जाता हूँ पहले लोग आते हैं और कहते हैं कि आप मुकेश जी के पोते हैं, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन। तो जाहिर सी बात है मेरा सर वैसे ही झुक जाता है कि मेरे दादाजी को आज भी इतनी इज्जत, इतना प्यार लोग दे रहे हैं। 100 साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हो गए, 50 साल हो गए उन्हें गए हुए,
फिर भी आज तक लोग उन्हें इतनी इज़्ज़त, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। Us, our parents, their parents, our children, everybody is going to love him because How he's a sweet, thank you. legend. मेरा तो उनका एक ही गीत है जो मेरे दिल के वाकई में बहुत करीब है, वो है जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना। मेरे दादाजी के कौन से गाने कब बंद होते हैं वो आप बताइए। नहीं नहीं, दिन में बंद कब होते हैं ऐसा मानिएगा। जैसे घरों में हम पूजा करते हैं और आरती और श्लोक बजाते हैं, हम अपने दादाजी की पूजा करते हैं और हमारे घर में शुरुआत होती है उनके गानों से और हमारी रात होती है उनके गानों से। मुकेश जी के गाने सिर्फ हमारे ही घरों में नहीं, बहुत घरों में जो है आज तक उनकी आवाज़ गूंजती है और सदियों सदियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार, आपकी इज़्ज़त बरकरार रहे, उनकी आवाज़ गूंजती रहे। ये तहे दिल से मैं उम्मीद करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ। Okay, sir, this is one picture. Sir. Yeah. So, yeah. सब सेंटर में भाई रुक जा ना भाई। Oh, yes, sir. Thank you. We just did. भाई मोबाइल अंदर लो ना। आइए सर, आइए। आप आगे भी जा रहे हो ना, जाना पड़ेगा भाई, फॉलो मारना पड़ेगा। अलग रूम के लिए थैंक यू। अरे नहीं यार, एक और है, ले लेना, एक ही बैठ के। आ जाओ, यही क्या? इधर 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 ये भाई, मैम थोड़ा एक स्टेप इधर आइए ना। 1 मिनट, लुक ओवर मैम। Can you just turn a little bit? Yeah. Oh yeah, ma'am. Ma'am, yeah. This one. Sorry. Ma'am, वो this one. तुम वहाँ से लेके आ जाओ। Ma'am, this one. Yeah, वही। हाँ, बूम वहाँ वहीं पड़ा था, इधर आ गया। बूम केबल सब लाके उसमें। Ma'am, straight away. Hold on. हाँ sir. Yes, sir. So yes, everyone, this corner. Thank you, sir. एक सोलो पिक्चर मैम वो या मैम सर आइए। सर एक सोलो जीतू साहब यहाँ पे सर यहाँ पे सेंटर में। थैंक यू। कोटी जी चल नहीं रही है। One minute, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। So yeah. Thank you, sir.
one more here. Can you take one? Thank you, sir. Let's have this one. Sir, yeah. Tino, sir. Start from here, sir. Start from here. All of you, sir. Yes, sir. Yes, please come. Start. Sir, ma'am, both of you. Yeah, bye. Sir, ma'am, both of you. Thank you.